अभी एक क्रिस्टोफर भाई ने अभी अपना जीवन में खुदा की सो भलाई के लिए गवाही देगा। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Dear brothers and sisters who have gathered here for this evening's meeting, I greet you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. जितने प्रिय भाई बहन लोग आज इस सभा में यहाँ पर आकर के उपस्थित हैं, उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। Firstly, I give all my thanks to the Lord Almighty for giving me this opportunity to stand in front of you to share my testimony with you. सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आप लोग के सामने खड़े होकर के गवाही देने का इस सुंदर अवसर मुझे प्रदान की। My name is Christopher and I belong to the TPM Church of Bhopal. मेरा नाम भाई क्रिस्टोफर है और मैं इस भोपाल के टीपीएम चर्च का एक सदस्य हूं। I have been the believer in this church for the last 1 year. और मैं पिछले 1 साल से इस कलीसिया का सदस्य हूं। And the Almighty has led me wonderfully throughout this year. और इस बीते 1 साल में अद्भुत परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन को अगुवाई की। After I had a lot of ups and downs in my life when I turned to this church, the Lord was gracious enough to give His mercy and give me all the blessings and the health that I was in need of at that point of time. और इस कलीसिया में आने के बाद जब मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आए, उस समय में मेरा परमेश्वर मेरी बीमारी के समय में अपने अनुग्रह और दया से मुझे थामे रहा। I am here in Bhopal for the last 14 years, but I belong to Tamil Nadu, a place called Ranipet. और मैं बीते 14 साल से भोपाल में हूं, लेकिन मैं रानीपेट मद्रास में एक गांव का रहने वाला हूं। I belong to a Christian family which has been Christians for the last 3 generations, and I came as the 4th generation. और मैं पिछले 3 हमारे जो मैं एक मसीही परिवार से हूं, मेरे परिवार के 3 जो पीढ़ी जो थी वो लोग मसीही को ग्रहण किए हैं। Just by being the 4th generation Christian in our family, I used to take a lot of pride in it without knowing that that is not the real pride. और मैं एक 4थे पीढ़ी का एक क्रिस्टीय विश्वासी होने के कारण मैं उसमें बहुत ही घमंड किया करता था। I had a wonderful upbringing. I had my grandfather who was a very holy person who had observed the religion fervently. और मेरे दादा जो थे वो एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति होने के कारण और वो जो धर्म की बातों को बहुत ही कड़ाई से मानने के कारण मुझे बहुत ही सुंदर रीति से और आत्मिक रीति से मेरा पालन पोषण हुआ या मुझे बढ़ाया गया। He used to have early morning prayers. और सुबह के वक्त में वे प्रार्थना किया करते। And even in the night we used to have singing, Bible reading and prayer for about half an hour to 45 minutes. और रात के समय में भी हम लोग गीत को गाते, धर्मशास्त्र अध्ययन करते, करीबन आधे घंटा 45 मिनट प्रभु के सम्मुख में हम लोग रहते। Similarly, my father also is a person who can quote Bible verses at will. और he can quote any Bible verse. He's a well-read in Bible. और मेरे पिताजी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाइबल को भली भांति जानते थे और बाइबल के किसी वचन को अच्छे से वो बोल सकते थे, बता सकते थे। So I belong to a very good Christian family which was observing the religion fervently. और मैं एक ऐसे अच्छे मसीही परिवार से था जो परिवार के लोग धर्म को अच्छे से पालन किया करते थे। Basically, we were members of CSI Church, a Protestant church. और हम लोग विशेष करके CSI चर्च के हम लोग सदस्य थे। There, my father was a very popular person and he was a very active person. He was the treasurer of the church for a number of terms, and he had been true and sincere. And he has built 3 or 4 churches during his span of service. और मेरे पिताजी जो थे वो कलीसिया के एक अच्छे सदस्य थे, हर बात में वो आगे रहते थे। कलीसिया में वो ट्रेजर के रूप में भी काम किए और उसके समय काल में 3-4 मंडली को या कलीसिया को उसने बनाया है। Everything was appearing very fine and fantastic at the outset. और बाहरी रीति से देखने के समय में ये बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाई पड़ रहा था। But the spirituality or the holiness that a Christian needs to have always was severely lacking. किंतु जो आत्मिक जीवन और जो पवित्रता का जीवन मसीही जीवन में होना चाहिए था, उसकी घटी हमारे जीवन में थी। That kind of environment was not there in our family because we were going to a church which was not very specific about being spiritual and holy. और इस प्रकार की बातें हमारे परिवार में नहीं था, कारण कि हम इस प्रकार के कलीसिया में जा रहे थे और जिन सारी बातों के विषय में अधिक जोर नहीं देता। A person who goes regularly to the church and who is actively taking part in activities of the church, then he is a very good Christian. अगर एक व्यक्ति कलीसिया को निरंतर जाता रहता है और कलीसिया के कामों में अगर वो अच्छे से काम करता रहता है तो एक अच्छा मसीही है करके उस वे लोग कहते हैं। Besides going to the church, and nobody is going to be worried about what you are doing the other times. और आप कलीसिया से बाहर चले जाने के बाद में आप अन्य समय में क्या करते हैं इसके विषय में कोई नहीं पूछता। So as I grew up,
I had a lot of friends due to which I was misled into several sinful activities in my teenage. और जब मैं बढ़ने लगा, मेरे दोस्तों के कारण मैं ऐसे कई प्रकार के पाप के कामों में मैं फंस गया. I had all the evils that normally all the youngsters have without any control. और जैसे सारे जवानों के जीवन में हुआ करता है, बिना किसी नियंत्रण के हर एक प्रकार के बुरे काम में भी किया करता था. All that I had in my mind is that I am not doing very big sins, which is worthy of getting caught in the police or being tried in the court of law. I am going to do small sins which nobody is going to know also. और मैं मेरे मन में इस प्रकार सोचा करता कि मैं कोई बड़ा पाप तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई गलती काम नहीं कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे पुलिस पकड़े या मैं किसी कानून के अंतर्गत दिखाई दूं, और मैं ऐसा गलती या ऐसा पापों को कर रहा हूँ जो कि कोई नहीं जान सकता है. I had two phases in my life as I grew up as an youngster. और जब मैं बढ़ने लगा, मेरे जवानी के समय मेरी दो छवि थी, या मेरा दो चेहरा था. That was the good part and the bad part of me. एक छवि था जो एक अच्छा छवि था, एक अच्छा भाग था, और दूसरा एक बुरा भाग मेरे जीवन में था. For all the other people whom I moved along with, I had a very good face. और जितने भी लोगों के साथ मैं जाया करता, उन लोगों की दृष्टि में देखने से मैं एक अच्छा व्यक्ति के रूप में दिखाई देता. Particularly in our church, the seniors and all the relatives, I had a very good name. और विशेष करके कलीसिया के लोगों के सामने, कलीसिया के प्राचीनों के सामने, या मेरे घर के सगे संबंधियों के सामने मेरे एक अच्छी गवाही थी. But deep inside, I knew that I was not a good person. किंतु मेरे भीतर की गहराई में मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा मनुष्य नहीं हूँ. I was filled with all the vices, all sins, all the wicked natures that you can ever imagine. और मैं हर एक प्रकार की चतुराई के कामों को, पाप के कामों को जो आप सोच भी नहीं सकते, मैं इस प्रकार किया करता था. But I knew how to cover it up and present myself as a good person. और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि कैसे इन सारी बातों को मैं छुपा दूं और ये दिखा पाऊं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ. Gradually, I was comfortable in living this kind of life, showing my 50% of my activities towards God, involving the church activities also, and besides being a sinful person on the other side. और मैं अपने अंदर इस प्रकार के जीवन के कारण बहुत ही तृप्ति होकर के दिखाई देने लगा. एक ऐसा जीवन जो दोहरा जीवन के समान हो, जो कलीसिया के सामने या परमेश्वर के लोगों के सामने एक अच्छा जीवन जी रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही काम कर रहा हो. In spite of all these, God had actually given all His blessings and grace, and He has given me good intelligence, good educational qualification. He gave me a good job, and He gave me a good wife and children, and everything was going very nice. और इन सारी बातों के बावजूद भी मेरा परमेश्वर ने मुझे बहुत ऐसी आशीष की. उसने मुझे एक अच्छा तालीम दिया, मुझे एक अच्छी नौकरी दी, एक अच्छी पत्नी और मुझे बच्चे भी दिए. All those grace and whatever mercies He showed upon me must have been purely because of all those godliness and the spiritualness of my forefathers. और जितना भी कुछ परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया दिखाया, करुणा दिखाया, ये सारी बातें मेरे पूर्वजों के द्वारा दिए, पूर्वजों के कारण मुझे मिली हुई सारी आशीषें थी. As a person, I was not worthy of all those blessings that I have been receiving from the God. मैं परमेश्वर को धोखा देने के कारण इन सारी आशीषों के पाने की योग्यता मुझ में नहीं था. When I was about 48 years, now I am 50. अभी मैं 50 वर्ष का हूँ, जब मैं 48 वर्ष का था. Till that time, I have never fallen very sick or I have never lost my health. और उस समय तक 48वें उम्र तक मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा, या मेरी अवस्था कभी भी ऐसी नाजुक नहीं हुई. In spite of all my weaknesses and drawbacks, God had been giving me good health. और मेरे हर एक प्रकार की दुर्बलताओं के बावजूद भी, कमी घटी के बावजूद भी, मेरा परमेश्वर मुझे स्वस्थ रखा. He was giving me good health for a long time, just only waiting for me that I would somehow turn to Him and become a spiritual and a holy person. और मुझे तब तक परमेश्वर ने एक अच्छे स्वास्थ्य में रखा जब तक मैं एक आत्मिक मनुष्य होकर के दिखाई ना देता, या परमेश्वर की ओर मैं बदल करके या परमेश्वर के समीप ना जाता. This is what I learned when I started coming to the TPM church. और यही बात है, जब मैं टीपीएम चर्च में आने लगा तो मैं इस बात को सीखा. That God was giving me a long rope, showing His mercy upon me. और परमेश्वर ने एक लंबी रस्सी मेरे ऊपर फेंकी, एक ऐसी रस्सी जो दया और करुणा की हो. But there came a time in my life about 2 years back. लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया पिछले 2 साल में, that I started having some really weird kind of sickness engulfing me. और एक बहुत ही भयंकर प्रकार की बीमारी आकर के मुझे धर दबोची. One evening when I was on the dining table to have my food at a different faraway place, I had been on official duty. और मैं एक कार्यालय के काम से अपने घर से दूर एक स्थान में जब मैं भोजन के लिए बैठा था,
when I was about to start eating, I was feeling a lot of uneasiness. I couldn't move my limbs. और जब मैं खाने के लिए बैठा तो मुझे मेरे अंदर ही अंदर मुझे बहुत ही परेशानी हुई और मैं अपने होठों को भी हिला ना पाऊं, एक ऐसी परिस्थिति में आकर के मैं पहुंच गया I couldn't eat the food. और मैं भोजन खा नहीं पा रहा था। I could place my hand on the food, but the next moment I was not able to make. और मैं अपने हाथ को उस भोजन की ओर बढ़ाता, लेकिन मैं कुछ करने नहीं पा रहा था। With great difficulty, I managed to have one chapati. और मैं बहुत ही कष्ट के साथ मैंने एक चपाती को खाया। That was the first time that I experienced. और ये पहली बार मेरे जीवन में ऐसी बात घटी। I've had a lot of fevers and other infections and all sicknesses which I had easily overcome. और ऐसी छोटी मोटी बुखारें और कई प्रकार की बीमारी मेरे जीवन में आई थी जिसके ऊपर मैं आसानी से जय पाया था। But this was different and this was recurring time and again in my life. और ये जो था वो सबसे अलग था और ये समय ले रहा था मुझे सामान्य परिस्थिति में वापस लाने के लिए। I started losing my health. और मैं धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को खोने लगा। Along with my health, I was also losing my mental strength. और मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ मेरे मानसिक बल को भी मैं धीरे धीरे खोने लगा। I was losing my weight also. मैं मेरे वजन को भी मेरे वजन भी घटने लगा। I went for a lot of medical tests to see what was wrong in my body. और मैं कई प्रकार के मेडिकल टेस्ट में गया ताकि मैं देख सकूं या जान सकूं कि मेरे शरीर में क्या तकलीफ है। I went from doctor to doctor. और मैं डॉक्टर से डॉक्टर के पास पहुंचा। One doctor told me my ECG is not perfectly fine. और एक वैद्य ने इस प्रकार कहा कि आपकी जो ECG है वो अच्छा सही ठीक नहीं है। Another doctor told me your ECG is perfectly fine. लेकिन जब दूसरे डॉक्टर के पास गया तो कहा कि आपका ECG ठीक है। Yet another doctor told me it's better you take an MRI and see what's wrong in your system. और एक डॉक्टर ने कहा कि आप जाओ और MRI को चेक करके देखो कि क्या परेशानी है। I went to another bigger hospital for the same MRI where the doctor told me MRI is not necessary. और मैं उसी MRI को चेक कराने के लिए एक और हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने कहा कि इस बात की जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। That means the symptoms which I was exhibiting was not permanent. It was fluctuating and it was very much disturbing, which was also not possible for the doctors to exactly diagnose what exactly was wrong in my physique. मेरे शरीर में जो बीमारी था एक ऐसी बीमारी थी जिसको डॉक्टर लोग सटीक रीति से कह नहीं पा रहे थे और ये बीमारी स्थिर नहीं था, बदलते बदलते जा रहा था। इस कारण से मुझे क्या हुआ वैद्य भी कहने नहीं पा रहे थे। I was steadily losing my health, my weight and my mental strength also. और मैं इसी प्रकार की अवस्था में मैं मेरे स्वास्थ्य को खोने लगा, मेरे मानसिक संतुलन को मैं खोने लगा और मेरा वजन भी घटने लगा। I just couldn't go out anywhere alone. और मैं कहीं पर भी अकेला फिर बाहर जाने नहीं पाता। I could only go to the church and to the office. और मैं केवल कलीसिया में जाता और मैं अपने कार्यालय में जाता। This was my condition, and the church to which I was going here in Bhopal, that was again another Protestant church. और मैं इसी प्रकार की मेरी अवस्था थी और भोपाल में मैं जिस कलीसिया में जाया करता था वो इसी प्रकार के प्रोटेस्टेंट चर्च था। In this kind of severe times that I was undergoing, I was also holding an office in the church, due to which I had to face some of the problems that pertaining to the church, and I was called for the police station also. और मैं कलीसिया में एक पदवी को रखने के कारण जब उस पदवी के अंतर्गत जब कुछ समस्या कलीसिया में हुई तो ऐसा भी हुआ कि मुझे उस समस्या के कारण मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। And I was supposed to go a few more times as well, but when I was not having any strength at all to move around, it was really puzzling me as to how I'm going to manage. और मेरे शरीर में सामर्थ न होने के कारण वहां पर मुझे और भी कुछ समय बिताना था, लेकिन ये मेरे शरीर में शक्ति या सामर्थ न होने के कारण मैं इसको किस प्रकार संभालूंगा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। That was the time when God gave me some wisdom and gave me a thought in my mind that I should not go to this church. और उस समय में परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार मेरे मन में चिंता को डाली कि मैं इस चर्च में और न जाऊं। I would rather go to the Pentecostal church. और मैं कोशिश करूं कि मैं एक पेंटिकोस्टल चर्च में जाऊं। Because Pentecost church was not new to me. क्योंकि ये पेंटिकोस्टल चर्च मेरे लिए नया नहीं था। I have stepped into a CPM church when I was about 9 years old. जब मैं 9 वर्ष की आयु में था उस समय में मैं CPM चर्च में एक बार गया था। That was along with one of my aunts. और वो मेरे एक आंटी के साथ में मिलकर के मैं गया था। Who was the first person to be called from our family into the as a believer first and subsequently as a worker in the TPM as well. और वो जो आंटी थी वो हमारे कलीसिया की वो हमारे घर की वो पहली सदस्य थी जो इस कलीसिया के एक विश्वासी होकर के दिखाई दी और उसके बाद वो सेवा में भी आई। She is serving as a mother in Kohima now. अभी वो कोहिमा सेंटर में वो मदर के स्थान में पदवित है।
During those days, TPM was not welcome in our family. और उन दिनों में टीपीएम या सीपीएम चर्च को हमारे कलीसिया में इतना निमंत्रित नहीं था। So she used to go to the TPM church in a stealthy manner. और इसी कारण से वो छुप के या कष्टों के द्वारा वो इस कलीसिया में जाया करती थी। As a kid, I always used to be with her. She was the one who brought me for most part of my younger part of my life. मेरे बचपन में या मेरे छोटे समय में अक्सर वही मुझे रखा करती थी और मैं उसके साथ रहने के कारण मैं उनके साथ जाया करता था। She used to take me several times to the church. और वो मुझे कई बार इस प्रकार कलीसिया में लेकर के गई। And subsequently, in a year or two, she went on to become a worker, and then she left. और साल 2 साल के बाद वो सेवा के लिए वो निकल पड़ी। So as I grew up into the teens, as I already shared with you, along with a lot of friends, I actually lost track of my life. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी उम्र के बढ़ते दोस्तों के कारण मैं मेरे मार्ग को खो दिया और मैं गलत मार्ग में आ गया। So I never thought of going back to CPM again. और इसी कारण से मैंने कभी भी इस बात को नहीं सोचा था कि मैं कभी दोबारा इस टीपीएम चर्च में जाऊंगा। But eventually, after my aunt left, left for the service of TPM, और my aunt who left for the worker as a worker in TPM, और जब मेरी ये जो आंटी जो है जब इस सेवा के लिए जब निकल पड़ी, soon after another aunt also, along with her family, she also embraced the TPM. और उसके जाने के बाद हमारे परिवार में एक और सदस्य इस सेवा के believer. वो भी इस विश्वास में आकर के जुड़ गई। And the whole family, as a whole family, they were very staunch believers and very involved into the ministry as well. और ये पूरे परिवार के साथ उन लोग इस सच्चाई में आए और वो बहुत ही कड़े रीति में इस सच्चाई को पालन किया करते थे। I have seen them going to village ministries along with the pastors and sisters. और मैंने उन्हें देखा है कि पास्टरों के साथ मिलकर के गांव-गांव की सेवा में वे लोग जाया करते। We were all having good relationship, but I was not having any mind to join them. और उन लोग के उनके साथ एक अच्छा संबंध था, लेकिन उसके साथ मिलकर के मेरे को जाना पसंद नहीं था। Subsequently, there were several other family members also who one by one started going to the TPM church as well. और ऐसे ही धीरे-धीरे हमारे परिवार के और भी कई सदस्य लोग धीरे-धीरे इस टीपीएम चर्च में जाने लगे। As the word of God says, even if one soul is saved, then the whole family also will be saved. That was coming true in our family. और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति उद्धार पाएगा तो सारे घराने को मैं उद्धार दूंगा, और ये बात में हमारे परिवार में हो रहा था। In terms of many people, but not exactly in our family, in my father, mother, myself and my brothers. ये हमारे घराने के कई परिवारों में ऐसा होता था, किंतु हमारे परिवार में ये नहीं हो रहा था। So this was a grave mistake that I was committing, that knowing fully well about the church, I wasn't careful enough to have a clean life going through that church. यद्यपि इन सारी सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं, तथापि मैं उसको सही रीति से पालन नहीं करता। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती था। So at the time of the suffering with my sickness, this all things came into my mind that I have to now go to the TPM church. और जब मैं बीमारी के समय से गुजरा और उस समय में ये सारी चिंता मेरे अंदर आई कि अब चाहिए कि मैं इस टीपीएम चर्च में जाऊं। I have seen the healing process also in some of my relatives through the TPM church. और इस टीपीएम चर्च के द्वारा किस रीति से वे लोग चंगाई को पाते हैं, उस बात को भी मैंने देखा है। I have seen it, but I've never really gave a serious thought about it when I was witnessing it at that point of time. और इन सारी बातों को उस समय मैंने देखा, तथापि मैंने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। But here in Bhopal church, when I started going to the church, किंतु यहाँ पर जब भोपाल चर्च में जब मैं कलीसिया में जाने लगा, I used to come to the church and sit for a while and then go back before the service was over. और मैं कलीसिया में आता, थोड़ी समय के लिए मैं बैठता, इससे पहले कि सभा समाप्त होता मैं उससे पहले ही उठ करके चले जाता। After several times watching me like that, the pastor came to meet me at my home. और ऐसे कई बार में करने के बाद पास्टर जी ने मुझे देखा और वो आकर के मुझे घर में मिलने के लिए आए। He gave me a lot of hopes. And he also insisted that I should stay back and have the food that is being prepared and served at the end of the service in the church. मुझे कई प्रकार की आशा भरी बातों को कहा और मुझे इस प्रकार सलाह दिया कि आप लोग आप कलीसिया में आकर के सभा के समाप्ति के बाद भोजन करके ही जाइएगा।
he was well aware of all my physical problems. और मेरे सारी शारीरिक दुर्बलता के बारे में अच्छे से जानता था. So he definitely said that God will work through the food and he will start giving you health once you start having it here in the TPM church. और उसने मुझे इस प्रकार सलाह दी कि परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को एक बार चंगा कर देगा अगर आप निरंतर कलीसिया में आओगे और इस कलीसिया में जो दिया जाता है भोजन है आप उसको यदि खाओगे. Right from the next week onwards I started accepting it and I was having food in the church. और मैंने उनकी बात को ग्रहण किया और आने वाले सप्ताह से ही मैं आराधना के बाद फलीफेतों में खाने लगा. Right from the first week itself I could feel a marked change. और पहले सप्ताह ही मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी परिवर्तन को मैंने होते देखा. The very first time I had my food, I went back and I was sharing with my wife that I'm feeling a lot changed and a lot different and a lot more, healthy. और जब मैंने पहली बार कलीसिया में जब मैंने भोजन किया तो मैं आकर के अपनी पत्नी के साथ मैंने इस प्रकार उन्हें कहा कि मैं भोजन करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर में बल और शक्ति को महसूस कर रहा हूँ. Praise be to God, I have never missed a lunch on Sundays. और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसके बाद से मैं किसी भी रविवार के बाद में दिए जाने वाले भोजन को मैंने छोड़ा नहीं. From the TPM church. इस TPM चर्च में. And as my health was improving, और जैसे जैसे मेरे स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था, I also knew that the pastor and the sisters and all the believers of this church were praying hard for me. और मैं इस बात को जानने पा रहा था कि कलीसिया के जो पास्टर्स हैं, सिस्टर्स लोग हैं और विश्वासी सारे लोग मेरे लिए बोझ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं. And week after week, as I was listening to all the word of God through the mouth of the apostle, और प्रेरितों के मुंह से जब मैं दिन प्रतिदिन जब परमेश्वर के वचनों को कलामों को जब मैं सुनने लगा, I could understand many truths that I was not aware of. और मैं उस समय में कई प्रकार के सच्चाई को मैंने जाना जिसकी विषय में मैं अज्ञान था. Even though I've been reading Bible all these years, but I've never learned the truth as much as I could gather in this 1 year, as compared to all the 48 years of my life. और यद्यपि मैं बाइबल को पढ़ा करता, किंतु इस एक साल के अंतर में मैंने जितनी सच्चाई को जाना मेरे जीवन भर में मैं कभी भी उन सारी बातों को सीखा नहीं था. As it is written in the book of Acts of Apostles about the early apostolic church. और जिस प्रकार प्रेरितों के काम के किताब में पहले प्रेरितिक सेवा के बारे में जैसा लिखा है, I could really feel and understand and experience the truth of the early apostolic church, which can be seen in the TPM churches. और पहले प्रेरितों के दिनों में जिस प्रकार का सेवा कार्य किया जाता था, मैं उन सारी बातों को कलीसिया में आने के बाद मैं उसको महसूस करने पाया कि ये सारी बातें यहाँ होती है. I have experienced the 4 things which is written in the word. That is, one is to learn the doctrines and the teachings from the apostles. मैं 4 प्रकार की बातों को यहाँ पर आने के बाद सीखा. एक, प्रेरितों के द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा को और सिद्धांतों को मैं जानूं. To have fellowship with the apostles. और प्रेरितों के साथ मैं एक संगति बनाए रखूं. And to break bread with the apostles. और उनके साथ मैं रोटी तोड़ूं. And pray along with the apostles. और उनके साथ मैं प्रार्थना में बने रहूं. And this was definitely working in a miraculous way in my life. और ये सारी बातें मेरे जीवन में एक आश्चर्य रीति से हो रहा था. Today I can testify before you that it was nothing short of a miracle that brought me back to my health. और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो मेरे स्वास्थ्य को परमेश्वर ने जो दोबारा लेकर आया वो एक आश्चर्य की बात है. It was a miracle that God performed through His workers. और ये एक ऐसी आश्चर्य की बात है जो अपने सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया. Week after week I was experiencing improvement in my health. और सप्ताह भर सप्ताह मेरे जीवन में मैं एक सुधार को देख रहा था. Earlier I could not even talk for a long time. I used to pant for breath. और मैं पहले जो था मेरी बीमारी के समय में लंबे समय तक मैं बात नहीं कर पाता था. अगर मैं लंबे समय बात करता तो मैं श्वास के लिए हाफने लगता. I can't exert much. और मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता. मैं ज्यादा जोर से मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता. So after I started coming here and attending these meetings and listening to the God's word, it was working in a miraculous way in me that I was gathering more and more strength. और जब मैं इन सारी सभाओं में आने लगा, परमेश्वर के वचन को सुनने लगा, तब मैं बल के ऊपर बल को मैं प्राप्त करने लगा. And today I stand here surely by the grace of God and through all the healing that I have got through this church. और मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और इस कलीसिया के द्वारा जो मुझे चंगाई मिला, मैं उसके माध्यम से यहाँ हूँ. So as I was progressing, it was in the month of March last year.
और पिछले मार्च महीने में मैं इस प्रकार में एक सुधार को अपने जीवन में देखा। The week of sanctification was approaching, और उस समय में शुद्धिकरण का सप्ताह आने वाला था। and pastor was teaching about the importance of water baptism. और उस समय पानी के बपतिस्मा की विशेषता के बारे में या मुख्यता के बारे में पास्टर जी बता रहे थे। Quoting from the book of John, chapter 3, verse 3. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 वचन को लेकर के It talks about a truth that unless a person is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. और 3 के 5 में जिस प्रकार लिखा हुआ है कि जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है करके। This was a great eye opener for me. और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आंख खुलने के समान हो गया। And I went through the whole week the process of sanctification. और मैं वो पूरे सप्ताह में इस शुद्धिकरण की सभा में शामिल हुआ। And prepared myself and accepted for the water baptism. और मैं अपने आप को तैयार किया कि मैं पानी की बपतिस्मा को लूं। God led me mightily and He allowed me to undergo the water baptism. और सामर्थी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे अगुवाई किया और पानी का बपतिस्मा लेने के लिए मेरी सहायता की। Earlier during the sanctification week, I had gone through the process of repentance and the remission of sins. और इस शुद्धिकरण के स्वभाव में मैं पश्चाताप करते हुए अपने पापों के लिए मैंने तौबा की। It was wonderful to go through the born again experience. और ये बहुत ही सुंदर अवसर था जो मैं इस नए जन्मे हुई अवस्था से होकर के गुजरूं। It was a great assurance from God to me that I have put back all my old sinful and evil ways behind me. और मुझे एक बहुत बड़ा एक निश्चय हुआ कि मेरे सारे जो पुरातन पाप थे वो सारी बातों को परमेश्वर ने मुझसे दूर कर दिया या मेरे पीछे फेंक दिया। It was also an assurance from the God that He has cleansed all my sins, all my past mistakes. और मेरे सारे पुराने पापों को मेरे परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, इसकी निश्चितता भी परमेश्वर ने मुझे दी। I could clearly feel that I have become a new person. I am not going to be the old person again at all. और मैंने इस बात को भली भांति जान ली कि मैं संपूर्ण रीति से एक नया मनुष्य बन गया और अब मैं वो पुराना मनुष्य ना रहा। God was gracious enough to let my wife also join me to undergo the water baptism. और परमेश्वर ने मेरी पत्नी को भी अनुग्रह दी कि वो भी पानी का बपतिस्मा ले। So as I earlier shared with you that even if one person is saved, the whole family is going to be saved. That's the word of God. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक व्यक्ति उद्धार में आएगा तो उसका सारा घराना या परिवार भी विश्वास में आएगा। So in line with several of my family members who have become believers in the TPM church, I and my wife also had come into this church. और जैसे कि हमारे परिवार के कई सदस्य लोग इस कलीसिया के सभ्य बने, उसी प्रकार में और मेरे परिवार के सारे लोग भी इसी कलीसिया के एक सदस्य बन गए। Gradually looking at us, my father and mother, who was also very staunch Protestants, they also very recently took the baptism. और हमारे इस परिवर्तन को देख करके हमारे माता पिता जो अपने उस विश्वास में जो बहुत ही कड़े थे, वे लोग भी इस निकट समय में पानी के बपतिस्मा को लिया। And in the coming days, the Lord should miraculously work and bringing all my family members into this church. आने वाले दिनों में हमारे परमेश्वर ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे बाकी सारे सदस्य भी इस कलीसिया में जैसे शामिल हो जाएं। And I also pray that more and more people should come into this church, as well as some of them should go into the ministry as well. और मैं ये ऐसे आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस कलीसिया में आएं और बहुत सारे लोग इस सेवा में भी बाहर निकल करके आए। Like as I said, the first one from my family was one of my aunts who is in the Kohima now. और जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि मेरे परिवार में मैं एक आंटी थी जो कि सबसे पहले इस सेवा के लिए निकली, वो वर्तमान कोहिमा में है। After that, another aunt's two daughters are also into this ministry. और उसके बाद मेरे एक और आंटी की 2 बेटियां इस सेवा में निकली। One went into 1985 and she is right now in Tanzania. और वो जो बहन जो है वो भी तंजानिया में है। Another cousin who and I only at this juncture I only pray to God that I should continue into this fellowship. और मैं अभी केवल यही आग्रह करता हूं कि मैं इस सत्यता में या इस संगति में निरंतर बने रहूं। And God should lead me in His path of righteousness in the days to come. और आने वाले दिनों में उसके धार्मिकता के मार्ग में परमेश्वर मुझे चलाना चाहिए। I thank the Lord for giving me this opportunity. Praise the Lord. परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं।